عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے تو میں بھی بہت سارے نیوز چینل کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ وہ شہباز شریف کو قاتل کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے ان کے کبھی ادھر جو ہے نا وہ کوئی جعلی مقابلہ کرایا یہ کبھی بھائی جو ہے نا ایسا ہوا۔ اوپر والی جگہوں پر آ جائیں، کیونکہ اوپر والی جگہ پر نا اب جو بھائی سن رہا ہے نا وہ نیچے جا کر اوپر آ جائے تو کلک کرے پلس کا سائن اوپر والا، تو اسی سیٹ پر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، کال ڈال لیں آپ۔ ہاں جی، آپ اوپر والی سیٹوں پر آ جائیں۔ کاکا سپاہی تسی بھی اوپر آ جاؤ۔ یہ دیکھیں نا وہ خبیث آ کر گیا ہے، یہ مطلب قادیانی جو ہے نا، جی وہ میں ایک بات کر رہا تھا کہ جیسے آپ نے مثال دی تھی نا کہ یہ اچھا کافی جو ہے یہ دیکھیں جی، کوئی لکھ رہا ہے کہ قادیانی پوری سمجھداری سے قادیانی ہے، تم لوگ گدھے ہو اور گدھے ہی رہو گے۔ اچھا لو بھئی، شیشہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، ذرا یہ میں پوری سمجھداری کی بات یہ بتانا کہ مرزا قادیانی چوڑا ہے، یہ بات تو پوری سمجھداری سے اس کے سکوں نے لکھی ہے، تو آپ اس بات کو کیوں نہیں مان لیتے کہ یہ دیکھیں جی دید حق کا لکھنے والا اس کو۔ ڈاکٹر صاحب وہ چلا گیا ہوا ہے، اس کو میں نے کہا تھا اوپر آ کے بات کرے، لیکن وہ ابھی چلا گیا، پینل پہ نہیں ہے بالکل بھی۔ ہاں بس بھاگ جاتے ہیں نا لکھ کر۔ جی قادیانی سمجھداری کے ساتھ قادیانی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے تو جتنے قادیانی دیکھے ہیں وہ ناسمجھی کی وجہ سے قادیانی ہے، جو ہی انہیں سمجھ لگتی ہے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ اسمبلی کی کارروائی کے بارے میں بہت شور انہوں نے مچایا ہوا تھا، تو ہم تو ایک تو اس کی پیدائش والی بات سب کو بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی مرزا کی یہ صفحہ نمبر نوٹ کریں، 595 ہے، یہ کارروائی ہو رہی ہے۔ تو مرزا ناصر کو ایک سوال پوچھا گیا ہے، یہ آپ اس سوال کو پڑھیں۔ یہاں پر آپ کو یہ ان کی خلافت کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ تو مرزا سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ جو تم توہین کرتے ہو اسلام کی، اب دیکھیں نا مرزائی سنیں آ کر، یہ دیکھیں اس کارروائی کو، یہاں پر بڑا واضح طریقے سے یہ لکھا ہوا ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ مرزا ناصر کہہ رہا ہے یہ 26 جنوری 1916 کے متعلق ایک وہ تھا سوال جسے نوٹ کر لیا تھا جو کل شام کو رہ گیا تھا۔ یہ یاد رکھیں کہ 14 اپریل 1914 کو مرزا محمود نے اپنے آپ کو پہلی مرتبہ خلیفہ کہا، اس سے پہلے حکیم نورہ انجمن کا صدر تھا، خلیفہ نہیں تھا۔ تو ان کا پہلا خلیفہ مرزا محمود زانی ہے، جو اپنی سکی بیٹیوں سے بھی زنا کرتا تھا۔ کہا کہ پہلا مسیح صرف مسیح تھا، اس لیے اس کی امت گمراہ ہوئی اور موسوی سلسلے کا خاتمہ ہوا۔ اگر میں بھی صرف مسیح ہوتا تو ایسا ہی ہوتا۔ یہ دیکھیں یہ ایک حوالہ ہے الفضل 26 جنوری 1916 سے، وہ پڑھ کر سنا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ پورا حوالہ آپ سے کو سوال بھی سمجھ آ جائے گا کہ سوال کیا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں جی، کہتا ہے لیکن میں مہدی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز بھی ہوں۔ اب یاد رکھیں کہ قومی اسمبلی کے ممبران کو بتایا گیا تھا کہ ذل اور بروز کا تصور قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے،
اور مفتی محمود صاحب کے الفاظ تھے کہ تقابلی مذاہب کا معمولی سا طالب علم بھی جانتا ہے ذل اور بروز ایک ہندوانہ تصور ہے. اور مرزا نے ہندوؤں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی. اور اب آپ کوئی مجھے بتائے کہ کتنے ہندو ہیں جو انڈیا میں اتنا بڑا ملک ہے قادیانی ہو گئے. وہ ابھی آپ کو ہم اس کا وہ دعویٰ دکھائیں گے جو اس نے ہندوؤں کے لیے کیا ہوا ہے. خبیث شخص تھا. لیکن میں مہدی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بروس بھی ہوں, اس لیے میری امت کے دو حصے ہوں گے. ایک وہ جو مسیحیت کا رنگ اختیار کریں گے اور تباہ ہو جائیں گے, دوسرے وہ جو مہدویت کا رنگ اختیار کریں گے اور قیامت تک رہیں گے. کہتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانے گا نا, اصلی والے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو, وہ برباد ہو جائیں گے. اور جو مرزا مرتد کو ٹٹی پیشاب مرزا جو کہتا ہے, اس کو جب مرزا ٹٹی پیشاب کہا جاتا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ اس نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو دو زرد چادریں پہنے آئیں گے, اس سے مراد اوپر اس کا دماغی توازن ہے, دوران سر اور مراق اور مرام اس کو کہتا ہے, اور نیچے اس کا پیشاب پخانہ ہے. کہتا ہے یہ مجھے دو بیماریاں, اوپر سے پاگل پن کی بیماری ہے, نیچے سے پیشاب پخانے کی بیماری ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ میری نبوت کا ثبوت ہے کہ یہ وہ دو زرد چادریں ہیں جو تمہیں نہیں نظر آتی. سنا آپ نے؟ اسی لیے جب کوئی مرزے کو مرزا ٹٹی پیشاب کہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کوئی گالی والی نہیں دے رہا. لوگ آ کے خام خام میں کہتے ہیں, اب حقیقت تو بتانی پڑتی ہے. کہتا ہے یہ تو حضرت خلیفہ اول کی زبانی بات ہے, یہ لکھنے والے جو ہیں خلفاء میں سے نہیں ہیں, ایک اور صاحب ہیں لکھ رہے ہیں. اسی کے آگے اسی پیراگراف کے اگلے حصے میں لکھا ہے ہماری جماعت کی دو پارٹیاں ہو جائیں گی. ہماری جماعت کی امت کی نہیں, تو وہ ایک لکھنے والا امت لکھ کیا, اور اس کے علاوہ دیکھیں فراڈ کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے برباد ہو جائیں گے اور ہمارے, کہتا ہے اس سے مراد غلطی ہوئی ہے. کہتا ہے جی یہ ایک نے امت لکھ دیا اور دوسرا جو ہے وہ امت نہیں لکھتا. کہتا ہے امت کے معنی عربی میں جماعت کے ہیں, یعنی کہ اپنی جو بکواس اس نے کی قومی اسمبلی میں اس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ آپ دیکھیں. اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وہی قادیانیوں کی طرح وہ بات جو پوچھی بھی نہیں, اسی فلو میں کہہ گیا کہ الیگزینڈر ڈوئی نے مرزے کو کہا تھا کہ تو حرام کی اولاد ہے اور تیرا باپ نہ معلوم ہے. یہ دیکھیں یہ حالت ہے مرزائیوں. کہتا ہے تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے. کہتا ہے اس کا ترجمہ مولانا ابو العلا مودودی صاحب نے یہ کیا, اور یاد رکھیں مولانا صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے. امت کے معنی تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے. لوگ امت کے معنی یہاں لوگ کیا گیا ہے, اور مولانا مودودی صاحب نے سر ہلا کے بھی انکار کیا اور اس پر لعنت بھی بھیجی. یہ بھی آپ یاد رکھیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ترجمہ یہ ہے, باعث کے باشد از شما گروہ جو بھی ہے فارسی میں, انہوں نے کہا گروہ ترجمہ اس کا ہے امت کا. یعنی کہہ رہا ہے کہ میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام نہیں لگایا, جھوٹ بول رہا ہے, فراڈ کر رہا ہے. یہ دیکھیں یہ ہے ان کی. کہتا ہے یہ تمام حجت کے متعلق صبح ڈکشنری بھی منگوائی گئی تھی. یہ تمام حجت کے متعلق قرآن کریم اور لغت میں جو تمام حجت کے معنی کیے گئے ہیں. اور ایک جو فاسقانہ تحریر ہے اس کو نئے یعنی کہتے ہیں ایک جھوٹ بول لے تو 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. یہ اس کے 100 جھوٹ ہیں. اس سے آگے صفحہ نمبر نوٹ کریں, 590 سے پڑھنا شروع کریں. آپ کو پتہ لگے گا کہ جھوٹ کے بعد جھوٹ بولتا جا رہا ہے. اس کے بعد انہیں اسمبلی میں بہت سارے سوال کیے گئے تو اس سے پوچھا گیا کہ تم مسلمانوں کو کافر کیوں کہتے ہو؟ مرزائی کافر کہتے ہیں جی مسلمانوں کو, آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو اس کا آپ صفحہ نمبر نوٹ کریں اور دیکھیں 216 صفحہ سے شروع ہوتا ہے. یہاں سے آپ پڑھنا شروع کریں. تو یہاں پر یحییٰ بختیار صاحب کا انگریزی زبان میں سوال لکھا ہوا ہے. Now sir, if a Muslim as I submitted yesterday accepts all prophet but does not accept Hazrat Isa as a Nabi,
in which category he comes of kafir, outside दायरा इस्लाम और outside दायरा मिल्लत। देखें इसमें दायरे इजाद किए हुए थे जो आज तक किसी ने नहीं सुने। एक इंतहाई जाहिल शख्स 3rd डिवीजन में इसने डिग्री की, वो भी ग्रेस मार्क्स दे के पास हुआ, पूरी जिंदगी उसको कुछ नहीं आता था। मुसलमानों को बता रहा है कि एक दायरा इस्लाम होता है, एक दायरा मिल्लत होता है। इतना जालसाज जो कुरान और सुन्नत इसको बारे में बात ही नहीं करती। तो अब सवाल पूछ रहे हैं या मुख्तियार साहब जी, अगर कोई शख्स इस्लाम को माने और सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार कर दे तो वो मुसलमान है या नहीं? ठीक है जी, आपका क्या ख्याल है, उसे मुसलमान कहा जाए या गैर मुस्लिम कहा जाए? क्यों काका सिपाही साहब तुसी चले गए हो? आखिरी बात में नहीं समझ सका कि ईसा अलैहिस्सलाम नबूवत का इनकार करता है, वो मिल्लत इस्लामिया से कहा नहीं होता। अच्छा तो फिर तो ये एक नबी का इनकार हो गया ना। हाँ, कहता है कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करता है वो मिल्लत इस्लामिया से। और मिल्लत इस्लामिया क्या है? कुरान सुन्नत में तो किसी चीज का नाम मिल्लत इस्लामिया नहीं, उम्मत मुस्लिमा है। डॉक्टर साहब आप पे इल्जाम नीचे लगा हुआ है, वो क्या? कह रहा है आपकी 80% फैमिली एमटी है। अच्छा तो यार वो केड़े लानती ने मेरे खानदान दे जेड़े अहमद कादियानी हो गए हैं? ऊपर आके गाल कर डॉक्टर साहब इसका जवाब मैं दे देता नहीं नहीं, केड़ा लानती मेरे खानदान च पैदा हो गया। ए वो कंजर ने जेड़ी अपनी मावां ते रावां दे मुंडे चढ़वांदे सन। ए राणे बने बैठे ने, राजपूत बने बैठे ने। ए वो कंजरियां दे बच्चे ने जेड़े अपना गुरदासपुर ते रोहतक हरियाणा करनाल दे अंदर कंजरी दे बच्चे जेड़े ने सिर्फ 2% वास्ते अपना ईमान वेच चुके ने। ए वो कंजरी मां दे बच्चे ने जेड़े बाहर परमानेंट रेजिडेंट वास्ते कादियानी बने हुए ने। ए एक बैल वाले राणे ने, राजपूत ने। कहता है कि मैंने बात नहीं करनी है। और इसमें सांस ही नहीं आज है। उत्ते आ जा चल, मैं राव आ, सारी दुनिया मेनू जानदी है। राव काका सिपाही तेरी मां दे उत्ते जेड़ा मैं गाल नहीं करदा, वो चल गया, भज गया। बस मैं 1 मिनट माइक खोलिया ते भज गया। ए कादियानियत है इन्हां दी। मैं वो के गाली कटदे रहंदे ने मिर्जा खंजीर दी तरह। लेकिन यार बात ये है कि ये मेरा असली नाम लिखते क्यों नहीं है ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरा असली नाम की है? ये दो मिनट नहीं ओनू मेरी फैमिली का पता है कि 80% मेरा नाम नहीं पता ओनू। झूठ बोलते हैं डॉक्टर साहब, ये शैतान की औलाद है। मिर्जा खंजीर जो था ये एक शैतान का चेहरा। नहीं, मेरा दादा जो थे ना कादियानी, उन्होंने अपनी जमीन के चारों तरफ लिख के लगाया था कि अगर कादियानी यहाँ कदम रखेगा अपना आप ही जिम्मेदार होगा। ठीक है, ये आज भी वहां पर बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो मेरे दादा जो जिंदा होंगे तो भाई साहब ताती चीज तो आज गए सो है। भाई बताओ, मेरा नाम तो बताओ ना। फैमिली बाद में कहता है 80% एमडी है। अच्छा एमडी तो है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन मिर्जा ही नहीं है। मिर्जा पर लानत भेजते हैं बड़ी सख्त किस्म की। अब भाग गया या इधर ही है ये? हाँ जी यार, ये कादियानी झूठ क्यों बोलते हैं? एक फिल्म आई थी आदत से मजबूर, ये उनका हिसाब है, आदत से मजबूर है। नहीं मतलब सोच दे भी नहीं कि क्या की रहे ने। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾदियानी की तरफ फंकी। हाँ नहीं, ये कादियानियों में ये बात मैं आपको बताऊं, ये शराब बहुत पीते हैं कादियानी। आपने देखा ना वो निदार नसर ने उससे पूछा शैंडी शाह, और शैंडी शाह का नाम शैंडी शाह क्यों है काका सिपाही तुम पता है? हाँ जी, बोतलें फड़ियां गई सन। हाँ, पुलिस ने जब इसकी कार को रोका, नशे में चला रहा था, तो वहां पर शैंडी की बोतल जो है ना, शराब और लेमनेड को मिक्स करने तो उसको शैंडी कहते हैं।
तो पुलिस ने क्रेट के क्रेट पकड़े इसकी कार से। तब से मिर्ज़ाई भी इसे शैंडी शाह कहते हैं। इसका नाम नसीर शाह है लेकिन शैंडी शाह के नाम से मशहूर है। शैंडी एक शराब का नाम है। नहीं, वैसे भी सुना है मैंने सर, इसकी एक फैक्ट्री है हरिपुर हजारा में, और वहाँ से ये शराब जो है पीसी होटल में जो है एक मुरब्बी है इनका, उसके जरिए से सारी ये पीसी होटल में शराब ये प्रोवाइड करता होगा। मतलब इतना अमीर है तो नहीं। इसकी तो किराने की दुकान थी, ये नहीं होती जो छोटी सी एक बर्मिंघम में। हाँ, वो मैं इसलिए कहता हूँ कि डॉक्टर साहब के एक आदमी जा रहा था इधर से पिछले साल, तो वो 4 वाडका की बोतलें लेके गया है। तो उसने कहा कि वो भाई तुम्हें रोकेंगे, उसने कहा नहीं, मुझे 4 अलाउड है और मैं अपना फॉर्मेट दिखाता हूँ कि मैं कादियानी हूँ, तो मैं काफर हूँ, तो मुझे अलाउ है। खुद कह रहा था सर इधर बैठ के 4 बोतलें मैं लेके जा रहा हूँ। किधर लेके जा रहा था? पाकिस्तान। तो उन्होंने जाने दी? नहीं, वो कह रहा है मैं लेके जा रहा हूँ, मैं कादियानी डिक्लेयर करता हूँ ना, काफर डिक्लेयर करता हूँ, तो वो मुझे नहीं रोकते ना। हिंदू इसको गैर मुस्लिम को अलाउड है। अच्छा। हाँ जी, अगर आप काफर हैं, मतलब ईसाई हैं, हिंदू हैं, एक हैं, तो आप ले आ सकते हैं। नहीं, बात ये है कि हमने तो शराब कभी चखी भी नहीं, हमें तो उसकी स्मेल भी अच्छी नहीं लगती। तो कादियानियों को जाहिर है इतनी अच्छी लगती होगी कि अपना दीन मान बेच। वैसे भी वो कौन से मुसलमान है, सही कहता है, वो काफिर है। नहीं डॉक्टर साहब, परसों मेरा ख्याल है वो जो अशरफ साहब है जो वो बता रहे थे कि जर्मन में जो जलसा होता है या इधर, तो उस जलसे की जो वैन आती है ना राशन लेके, उसमें शराब के वो क्रेट रखे होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं जी। और अगर पकड़े जाएं तो पता क्या कहते हैं? कहते हैं जलसा सालाना पर फॉरेनर आते हैं, ये मेहमानों के लिए। ये भी आपको मैं इनका बहाना भी बता। अब आपको पता लग गया, मिर्ज़ाई लिख गया है कि मुझे मेरा इल्म इतना सही है मिर्ज़ाइयत के बारे में। वो कहता है कि इसका सारा खानदान कादियानी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो देखें जी, अब काकस पर जवाब पड़ा है मिर्ज़ा नासिर का। ये तो इसीलिए जो इसने अपने साथ नाम लगाए हुए थे, मिर्ज़ा गुलाम रदर कपाल सोंदी, और कोई एक सिख भी था, वो इसकी समझ नहीं आई और इसकी ये मंतक क्या थी। अच्छा, मतलब जो ये मुख्तलिफ नबी होने के दावे करता है वो आप कह रहे हैं? जी जी, वो साथ में कृष्णा भी था, वो हिंदुओं के नाम भी। नहीं, हम आपको दिखा देते हैं। ये कौन सी लंबी चौड़ी बात है? ये आप देख रहे हैं हकीकतुल वही। ये मैं आपको दिखाता हूं। नहीं, ये हाँ, आपने ये पढ़ा है काकस पे? या जरा पढ़ना, एक और वाला लब्बे नुसरत जहां बारे। जी डॉक्टर साहब सुनाए आप। नहीं, पढ़े तो सही है, देखें वाला नोट करें। ये खजाइन की जिल्द 22 है, सफ़ा 522, और तमत्ता हकीकतुल वही है। देखो की लिखा हुआ उन्हें। अच्छा, हाँ, पढ़े। इसलिए अपने पोतियों को फोड़ कर, अपने पतियों को, खामदों को। अच्छा, पतियों को स्त्रियां यानी औरतें अपने पतियों को छोड़ के दूसरों पर निगाह रखें। कहता है कलयुग की निशानी ये है कि औरतें अपने खामदों को छोड़ के दूसरों पर निगाह रखें, और औलाद अपने वालिदैन की वफादारी में न रहे, और वालिदैन अपनी औलाद को औलाद की तरह ना समझे। किसकी? नुसरत जहां की बात कर रहा है। कहता है कलयुग है, देखो। हाँ जी,
ले भाई, आपने पूछा था वो कृष्ण महाराज का, तो ये आप हवाला नोट कर लें। तो 521 नंबर सफ़ा है, खजाइन की जिल्द 22 है, तमत्ता हकीकतुल वही है। यहाँ पर मिर्जा पहले आपको कृष्ण वाला हिस्सा दिखा दें। कहता है हर एक नबी का मुझे नाम दिया गया, आपको नजर आ रहा है ना? जी जी। हाँ, कहता है चुनाचा जो मुल्क हिंद में कृष्ण नाम एक नबी गुजरा है, जिसको रुदर गोपाल भी कहते हैं, यानी फना करने वाला और परवरिश करने वाला, इसका नाम भी मुझे दिया गया है। यही पूछ रहे थे ना आप? जी जी, यही पूछ रहा था। नहीं आगे ये रहा था कि इसका ये मंतक क्या था कि नहीं वो भी बताते हैं, आप पहले उसका दावा तो सुने ना। अब ये इंडिया में आया, गुरदासपुर इंडिया को दिया। इंडिया में कोई हिंदू इस खबीस को नहीं मानता, ये भी मैं आपको बता दूं। कहता है पस जैसा कि आर्या कौम के लोग कृष्ण के ज़हूर का इन दिनों में इंतजार करते हैं, वो कृष्ण मैं ही हूं। आपने पढ़ा आखिर में लिखा हुआ है, कहता है वो कृष्ण मैं ही हूं। ठीक है, और कहता है और ये दावा मेरी तरफ से नहीं, आपने देखा मोटा करके लिखा हुआ है, ये दावा मेरी तरफ से नहीं, बल्कि खुदा ताला ने बार बार मेरे पर जाहिर किया है कि जो कृष्ण आखिरी जमाना में जाहिर होने वाला था वो तू ही है, आर्यों का बादशाह, हिंदुओं का बादशाह। लो जी, कोई मर्जाई सन दसे कि कितने हिंदुओं ने अपने बादशाह को, सलामत को मानना है। ठीक है जी, अभी आपकी उस सवाल का हम जवाब देते हैं कि ऐसा ये क्यों कहता है। उससे पहले उसका दावा नंबर, इससे बड़ा दावा सुन ले। ये आपको नजर आ रहा है? ये आप पढ़ें, आप पढ़ लेते हैं ना उर्दू? ये आप पढ़ें क्या लिखा है जो हाईलाइटेड है। मुझे लफ्जों को नहीं समझ आ रहा। लिखा है और दुनिया में कोई नबी नहीं गुजरा जिसका नाम मुझे नहीं दिया गया। कहता है दुनिया के हर नबी का नाम मुझे दिया गया है। कहता है सो जैसा कि इब्राहीम अहमदिया में खुदा ने फरमाया है मैं आदम हूं। सुने मिर्जा आदम जे, कहता है मैं नूह हूं, नूह भी मिर्जा ही है। मैं इब्राहिम हूं, कहता है मैं इब्राहिम भी हूं। मैं इसहाक हूं, मैं इसहाक भी हूं। यकूब हूं, मैं इस्माइल हूं। मैं मूसा हूं, मैं दाऊद हूं। मैं ईसा इब्ने मरियम हूं और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। सुन ले जी तुसी है क्या पता है, कभी कृष्ण का नाम ही है, कभी सच्चे जो है ना। नहीं, आपने वजह पूछी थी ना ऐसा। आप मुझे बताएं कि ऐसी बात कौन करेगा। आप ये तो कोई दिमागी मरीज लग रहा है। सही पहुंच गए तुसी जगह पे, आपको डायग्नोसिस पता लग गया ना, ये एक दिमागी मरीज था। ठीक है, आगे लिखता है खुदा ने इसी किताब में ये सब नाम मुझे दिए और मेरी निस्बत जरीउल्लाह फी हुलुल अंबिया फरमाया, यानी खुदा का रसूल नबियों के पैरायों में। कहते हैं अल्लाह, असल में इसका मतलब है जरीउल्लाह मीन अल्लाह का शेर फी हुलुल अंबिया, जिसमें सारे नबी ऑल इन वन मिक्स करके पाते मिर्दे च ठोक ठोक के टट्टी पेशाब नाल निकल दे जा। मतलब क्या कहें, तौहीन हो जाती है ये तो। कहता है सो जरूर है कि हर एक नबी की शान मुझ में पाई जावे। लो जी, आगे पिछली तहरीर में आवे जावे नहीं था, यहां पर आवे जावे शुरू हो गया, क्योंकि ये एडिट की है मौलवी अब्दुल करीम ने ये तहरीर। जहां से उसने फिक्रा नहीं बदला वहां आवे जावे मौजूद है। कहता है मगर खुदा ने यही पसंद किया सबसे पहले, कहता है कि हर एक नबी की शान मुझ में पाई जावे और हर एक नबी की एक सिफ्त का मेरे जरिए ज़हूर हो। आपने जी कोई मिर्जे की सिफ्तें देखी? हाँ, वो ममदी बेगम 8-9 साल की थी, उसको ताड़ते हुए नीचे गिरा और हाथ तोड़ा लिया है। भानु माई से टांगे दबवाता था, ममदी बेगम की शलवार सूंघता था। ये मिर्जे की सिफ्तें हैं ना। शराब पीता था, भांग घोट घोट के पीता था।
आगे देखें, कहता है कि मगर खुदा ने यही पसंद किया कि सबसे पहले इब्ने मरियम की सिफात मुझ में जाहिर करे, सो मैं अपनी कौम से वो सब दुख उठाए जो इब्ने मरियम ने यहूद से उठाए। ये आप पढ़े, सारी किताब पढ़ लें, इसी बकवास से भरी हुई है। क्रिश्चियन हो गया, नीचे देखें आपको इससे ज्यादा श्री निष्कलंक भगवान का अवतार श्री हनुमान जी की जय, कहता है मैं बांदर भी हाँ। देखा हमने, ये बात तो ठीक है, ये बंदर की तरह कभी इधर नहीं कहता है श्री हनुमान दी जय। मैं तो नहीं कह रहा, कहें तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि देखने वालों को शक ना रहे कि हम अपनी तरफ से घड़ रहे हैं कुछ। ये लें जी, श्री हनुमान की जय और श्री निष्कलंक भगवान का अवतार। ये जी मिर्जा कहता मैं अवतार भी हाँ ते बांदर भी हाँ। हुण दसो, आपने यही सवाल पूछा था, हमने मिर्जे की किताब से आपको दिखा दिया। यह कहता है ये उसकी मोहर है। श्री शोरजी महाराज ने कहा है एक जगत में सब राहत वरागी प्रेम से प्रभु प्रगटे, जो भी बकवास उसने लिखी हुई है ये देख लें जी। अब ये अपने आप को मासूम खलीफातुल्लाह कहता है, भी वो इनके खुदाई खलीफे तो बाद में आए हैं, तो ये अपने आप को किसका खलीफा बता रहा है मिर्जा। ये देख लिया जी आपने। तो सब इसीलिए तो ये जो मिर्जे की गुड़ती है ना, इनको हमारी जुबान में गुड़ती कहते हैं जी। इन मिर्जइयों को भी गुड़ती है ना, इसलिए तो वाज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जो कुरान का भी तर्जुमा गलत करते हैं, हदीस का भी गलत मौक़िफ़ लेते हैं। वो जी हर काम गलत करते हैं, उन पर अल्लाह की लानत है मिर्जइयों पर। हमेशा मतलब गलत लेना तो बहुत छोटी सी बात है, वो हर काम गलत करते हैं। जी जी हाँ, इसमें तो एक वो मैं सुन रहा था कि खुदाई का दावा भी कर दिया। नहीं, खुदाई के बहुत सारे दावे किए हुए हैं, एक दावा तो नहीं है, बेशुमार दावे मिर्जे ने खुदाई के किए हुए हैं। इनकी जो जमात के अभी पढ़े लिखे हैं बिल्कुल, हम उनको क्या कहेंगे। मैंने उन्हें ये बातें पता नहीं है। आप एक बात समझें कि जो कादियानी है, आम कादियानी, उसने कभी मिर्जे की तहरीरें नहीं पढ़ी, वो उसको बिल्कुल इल्म नहीं है कि मिर्जे के दावा जाते हो तो उसको मसीह मौत मानता है। पता नहीं उनकी नज़र में मसीह मौत क्या चीज़ है। कहता है जी जेड़े ईसा अलैहिस्सलाम ने आना सी वो आ गया, हो बस, इससे ज़्यादा उसका इल्म है ही नहीं है। वो इसके दावा जात पढ़ ले, देखें आपने बगैर किसी के, हालांकि बड़े बड़े आलिम लोगों ने जिन्होंने इस पर बड़ी तहकीक किया, उन्होंने यही नतीजा निकाला है कि ये ज़हनी मरीज था। आपने 2 लाइनें पढ़कर कह दिया ये ज़हनी मरीज है। आप मुझे बताएं, इसकी जो पागलपन है छुपाए नहीं छुपता है। जब कादियानियों को ये बात पता लग जाती है वो कादियानियत को छोड़ देते हैं। ये कौन आया है जी? ये जे साहब कौन है? भाई जान था आराम से बोले, इतना ऊंची बोल रही, मेरे कान में दर्द हो रही है। आप हैं कौन? मैं शिया हूँ। अच्छा, तो शियों के बारे में बताएं कुछ। हज़रत अली। इससे आगे बताएं कुछ। मैं शराब है ये भाई ये तो आराम से बोले, आप इतना ऊंची बोल रहे, मुझे कान में दर्द हो रही है। अच्छा, तो और कुछ? आप अपना माइक खा रहे हैं अभी। अच्छा, बस शराब कौन सी पी हुई है? मैंने कुछ नहीं पिया हुआ। नहीं, लग तो रहा है ना। आपका मुझे नहीं पता है।
देखें जी, ये मिर्ज़ाई था, ये कहता है कि ये शिया हूँ। ये आजकल इन्होंने सिलसिला शुरू किया हुआ है कि कोई शिया बनकर आता है और कोई कुछ और बनकर आता है। ठीक है, तो ये बहुत ड्रामा करते हैं। कभी कभी तो आके कहते हैं कि हमें मिर्जे का पता ही नहीं है। जब वो मिर्जे के ऊपर कहते हैं लानत डालो तो फिर जो है ना, तो फिर घबरा जाते हैं। हाँ देखें, उसको हमने उठाया, अब इसने शराब पी हुई है। अब हम अच्छा, ये कौन साहब आए हैं जी? जी बताएं, आप कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बड़ा फायदा हूँ माशाल्लाह, आप बड़ी अच्छी मालूमात देते हो। मैं अक्सर हमेशा आपको सुनता रहता हूँ, तो अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। बहुत शुक्रिया भाई। आपका नाम जिसे पता है? मेरा नाम नदीम अहमद है। मैं यूके का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, और मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, आपका नाम ही मुसलमानों वाला आपने चुना। कोई कादियानी में इतना जिगरा नहीं अपने आप को मदीना वाले का गुलाम कहे। अल्लाह ताला उसको इजाजत ही नहीं देता इस बात की। बेशक बेशक। मैं ज़िया रसूल साहब से मुतासर हो गया, उनका मैंने चैनल आका का गुलाम जो था। जी जी बिल्कुल, तो उनसे मुतासर होकर मैंने आईडी रखी मैं खुद। हाँ नहीं, बड़ी अच्छी बात है, हम सब उनके गुलाम हैं। जी बेशक बेशक बेशक। तो मैं बड़ी मालूमात आपसे मिली है मुझे, मैं अक्सर सुनता रहता हूँ। मुझे एक चीज़, अभी मैंने क्वेश्चन भी नीचे लिखा था कि गामदी के बारे में थोड़ा बताइए कि ये भी कादियानी है। देखे गामदी कोई, देखे कादियानी जो है दो किस्म के हैं जी जो अपने बिलीफ के एतबार से आपको मिलेंगे। एक वो कादियानी है जो खुलकर कहता है मैं कादियानी हूँ, वो इस सिलसिले को चलाता है, कोई मिशनरी है, कोई कुछ है, तो आप उसको पूछे वो आपको बताएगा वो कादियानी है, क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं। ठीक है जी हाँ जी जी। तो वो इसमें लिपा टोपी नहीं करता, क्योंकि वो मुल्हिद भी है और जो कुछ भी है। एक ऐसी किस्म के कादियानी है जो अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं और हर कोशिश करते हैं कि उनकी कादियानियत छुपी रहे। हाँ बिल्कुल जी जी। वो लोग हैं जिनके अबाउ इस्दाद भी कादियानी है, लेकिन वो अपनी बाज वजूहात की बिना पर इसको छुपाते हैं। और ये बात उन्हें कादियानियों के जो साजिश है उसका एक हिस्सा है, आप ये बात समझ लें। कादियानियों ने एक ऐसा ग्रोह तैयार किया है पाकिस्तान में, खास तौर पर दूसरे मुल्कों ने इनकी ये साजिश कामयाब नहीं होने दी। पाकिस्तान में जैसे कमर जवेद बाजवा है, ये नमाज ग्रुप है और दूसरे लोग हैं, वो उनकी बैकग्राउंड बड़ी वाज़ेह किस्म की कादियानी है। कमर जवेद बाजवा का पूरा खानदान कादियानी है, लेकिन वो कहते हैं कि हम लोग मुसलमान हैं। अच्छा अच्छा। वो कहते हैं हम कादियानियों को नहीं मानते, लेकिन कादियानी पर लानत भी नहीं भेजते। वो अगर आप कहें कि तुम लानत भेजो मिर्जे कादियानी पर, वो कभी लानत नहीं भेजेगा। अच्छा, कहेंगे जी इजाजत ही नहीं, ये इखलाक के खिलाफ है। ज़ाहिर है, जो आपके नबी को नहीं मानता उसमें तो लाख दफा लानत भेजो। नहीं नहीं, अल्लाह का हुक्म है जी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उनकी लाशों पर भी लानत भेजी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है, जहाँ मुर्तद का जिक्र है वहाँ उलाइका जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लानत अल्लाहि वल मलाइकाति वन नास अजमईन, कि इन पर लानत है अल्लाह की, फरिश्तों की, इंसानों की, सबकी। जब मेरा रब मेरे बिहाफ पर लानत भेज रहा है, मैं तो करोड़ों दफा, अरबों अरब खरबों दफा इन पर लानत भेजता हूँ। बल्कि एक और जगह कहा है, इन्नल्लज़ीना कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफर किया, वो मातू और मर गए, वहुम कुफ्फारुन, और वो काफिर थे मरते हुए। उलाइका अलैहिम लानत अल्लाहि वल मलाइकाति वन नास अजमईन, उन पर है लानत अल्लाह की, फरिश्तों की, इंसानों की, सबकी, यानी उनकी लाशों पर भी अल्लाह ने लानत भेजी। अब ये जो मिर्ज़ई है और उनका जो हम दर्द है, कहते हैं जी मैं कैसे लानत भेजूं, ये तो गैर इखलाकी बात हो गई ना, तो आप तो गाली दे रहे हैं लानत कह के। और जिसको वो कहते हैं गाली दे रहे हैं, वो मिर्जे ने लानत नंबर 1, लानत नंबर 2 से लानत नंबर 1000 तक लिख रखी है। 9 सफ़े काले किए में उसने लानत लानत ले, इतना देनी मरीज था। जी जी बिल्कुल। माशाल्लाह आपकी बड़ी मालूमात है इसके बारे में डॉक्टर, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे इस चीज़ का। नहीं, हमारी इस्लाम के बारे में ज्यादा मालूमात है।
नहीं, वो तो है ही, आपसे कुरान भी है माशाल्लाह, मैंने आपकी देखा है। आपका पूरा नाम नहीं लिखा होता वैसे, आपका नाम मुबारक नहीं लिखा होता। नहीं नहीं, मेरा नाम आपको नजर नहीं आ रहा? ये जी डॉक्टर सैयद होली स्पिरिट जी। हाँ, तो आप होली स्पिरिट को नहीं जानते? मैं जैसे पूरा नाम होता है ना, जैसे पाकिस्तानियों के अपने नाम होते हैं, मैं वैसे ये आपकी मैंने अपना असली नाम ही लिखा था, तो मेरा यूट्यूब का चैनल नजर ही नहीं था आता। अच्छा, समझ गए आप? जी मैं तो समझ गया। फिर मैंने होली स्पिरिट लिखा तो बिल्कुल ही गायब हो गया। होली स्पिरिट के साथ मैंने जो ही सैयद लिखा, जो मेरा असली नाम है सैयद। अच्छा हाँ जी, तो मैंने जो ही उसके साथ सैयद लगाया तो वो सबसे ऊपर नजर आने लगा। अच्छा होली स्पिरिट हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहते हैं, रूहुल कुदस को कहते हैं ना होली स्पिरिट का। जी बिल्कुल। आप रूहुल कुदस को ही कहे तो क्या आप समझेंगे किसकी बात हो रही है? हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम की। नहीं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो फरिश्ते। हाँ जी, रूहुल कुदस जो है ना, जी वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। अच्छा माशाल्लाह, ये भी नॉलेज में इजाफा हुआ जी। हाँ जी, उसको ईसाई दुनिया होली स्पिरिट कहती है, मुस्लिम दुनिया रूहुल कुदस कहती है। आप मुझे बताएं मेरे नाम में क्या गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं, सीधा सा नाम है। जी माशाल्लाह। मैं रूहुल कुदस लिख दूं तो वो नजर ही नहीं आता, कोई नजर ही नहीं आए, कोई समझेगा। कादियानी तो चाहते हैं यहो जिहा ना लिख के तेरा चैनल नजर ही ना आए, बल्कि इन्होंने हैक किया हुआ है मेरा चैनल। अच्छा। हाँ नहीं माशाल्लाह, जैसे आपकी मालूमात है, मैंने उस दिन भी आपसे बात की थी, वो मैंने डाउनलोड किया था अपना दीदे हक। अच्छा, तो पढ़ी आपने दीदे हक? नहीं पढ़ी नहीं मैंने, मगर मालूमात ज्यादातर तो आपके चैनल से ही मुझे काफी मालूमात मिली। मैंने अभी नहीं, तो आपने दीदे हक को पढ़ना भी था ना। देखे हम तो मेरे पास है, अभी तक डाउनलोड है। हाँ, मैं देखे उसमें लिखा है कि मिर्जा एक काफिर खानदान से है। जी ठीक है, और जो शख्स है ही काफिर खानदान का और जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, और यहाँ पर हम एक कार्ड दिखाते हैं जिस पर लिखा हुआ है कि उसका असल नाम सोंदी था। जी आपने कार्ड भी दिखाया जी, मैं आज सुबह देखा वो कार्ड आप दिखा रहे थे। हाँ पहले। हाँ जी, ये कार्ड उसको 1864 में किसी ने चंबा जिले से भेजा था जो पंजाब में है। अच्छा ठीक है। हाँ जी, एक दूसरे भाई आए हैं, क्या नाम है? जुनैद साहब। जी हाँ जी, आपका नाम तो बड़ा पहचाना लगता है, डीपी अलग है। आप बताएं, आप कहाँ पहचाना आप मुझे? नहीं, बहुत सारे लोगों के नाम ऐसे मिलते हैं, तो आप बताएं, अपना तारुफ कराएं, आप कौन है? मुसलमान है, कादियानी है, कौन है? हम मुसलमान है भाई। तो मिर्जा कादियानी को क्या समझते हैं? गुलाम कादियानी को? गुलाम कादियानी कुत्ता है, कुत्ता। अच्छा, ठीक हो गया। तो हाँ, कैसे तशरीफ लाए ये भी बता दें। उस पे लाना भेजने के लिए आया हूँ। मिर्जा कादियानी पर? बिल्कुल। हाँ चलें, बड़ा अच्छा है, हम भी भेजते हैं। अल्लाह का हुक्म है कि मिर्जा कादियानी पर लानत भेजता है, हर मुर्तद पर लानत भेजना हमारा फर्ज है। अल्लाह ताला ने इस बात का हुक्म। आपके पास एक बैठा हुआ है ना? कौन? ये सिपाही नाम है इसका, इस तस्वीर लगाई है। नहीं, ये तो अपना भाई मुसलमान है। इसके डीपी पे क्या लगा हुआ है? मिर्जा कादियानी मुर्तद की फोटो लगाई हुई है इसने, उसके आगे सूअर खड़ा किया हुआ है। हाँ, ये कादियानी नहीं है। उसमें नजर नहीं आ रहा था। हाँ जी, ये कादियानी नहीं है। अच्छा, मैं क्या ये क्या कर रहा है? अच्छा ठीक है। नहीं, ये कादियानी तो इसकी डीपी देख के इसे नीचे उतार दे, ब्लॉक कर देते हैं भाई। काका सिपाही कितने गए हो तुसी? हाँ जी, आप क्या जानते हैं? आपको पता है मिर्जा कादियानी पैदाइश
पैदाइश एक काफिर खानदान में हुई? ये तो मुझे नहीं पता। देखें जी, यहाँ पर लिखा हुआ, हम आपको किताब दिखाएं जहाँ ये बात लिखी है? बस आपने बोल दिया, मुझे यकीन है भाई। नहीं, देख लें, ये दीदे हक किताब का नाम है। ये आप भी डाउनलोड करें, हम सबको डाउनलोड कराते हैं। हम इसका नीचे लिंक लिखते हैं, आपने गूगल करना है, ये किताब डाउनलोड हो जाएगी आपसे, ठीक है? तो मैं नीचे आपके लिए लिंक लिखता हूँ, आप इसको गूगल करें और पहले जो आए ना, तो फिर ये किताब आप पढ़ें। देखें, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपने, तो आपको ये किताब डाउनलोड हो जाएगी। ठीक हो गया, ठीक। मैं इसमें ये बात लिखी है कि मिर्जा गुलाम कादियानी एक काफिर खानदान में पैदा हुआ जो एक 5000 साल पुराना मजहब है, बाल्मीक और लाल बेगी। आपने देखा है ना, ये उसका फर्स्ट कजन था, ये इमाम दीन, ये इनका रूहानी पेशवा हुआ करता था। उसने लिखा है ना, तालीफ मिर्जा इमाम दीन मारूफ बा, इमाम दीन मारूफ बा मौलाई हदायत कुनिंदा कौम लाल बेगियां रईस कादियान मुगलान जिला गुरदासपुर पंजाब। ठीक हो गया जी। हाँ जी, ये आप पढ़े, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिर्जा काफिर खानदान से ताल्लुक रखता है। हाँ जी, ये एक और भाई आए हैं, क्या नाम है इसका? हाँ, ये मुस्लिम, एक मिसाली मुस्लिम साहब, क्या हाल है आपका? मसीही मुस्लिम जी, क्या हाल है डॉक्टर साहब आपसे? अच्छा, मसीही मुस्लिम लिखा हुआ है आपने। जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। अच्छा, आप वो हैं जो अपने आप को ईसाई और मुसलमान दोनों कहते हैं? जी 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 बिल्कुल। मैं बड़ी देर से सुन रहा हूँ आपको, बड़ा मजा आया था लास्ट टाइम भी आपसे बात करके जी। लेकिन अभी जो आपने एक बात की उस पर मैं इसलिए ज्वाइन किया कि आपने कहा कि होली स्पिरिट है एंजल गैब्रियल। हाँ, एंजल गैब्रियल का नाम है। मैं इस चीज से बैक टू डिफर। अच्छा, क्यों, बताएं? क्योंकि जो है ना, ये है होली स्पिरिट जो है अल्लाह की पाक रूह है। जब इंसान को बनाया गया। अच्छा, आप कौन सी वाली क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, ये बताएं? देखिए जी, मैं तो जो है बिब्लिकल क्रिश्चियनिटी को मानता हूँ। मैं कोई एक डिनोमिनेशंस, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था। हाँ, नहीं, मुझे याद है, मुझे याद है। लेकिन ईसाई तो कहते हैं फादर, द सन, द होली स्पिरिट। वो देखें, जो ट्रिनिटी है ना जा, हाँ जी, वो ट्रिनिटी जो मैं उसको आई वुड रादर कॉल इट ट्रायूनिटी रादर देन ट्रिनिटी। क्योंकि ट्रायूनिटी में जो है ना इक्वालिटी, ऑल थ्री आर इक्वल, उस पे आई थिंक वो जो है ना, आई डोंट थिंक, आई एम प्रीटी श्योर दे आर प्रीटी डिसेप्टिव बिकॉज नो वन कैन बी इक्वल टू गॉड। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि ट्रिनिटी में जो है ना, यू हैव टू मेंटेन द हायरार्की ऑफ द फादर। हाँ, नहीं, ठीक है। आप मतलब जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो पता लग गया हमें। हाँ, तो होली स्पिरिट पर क्या आप कहते हैं? देखिए, जब सूरा 15:29 में जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया सूरा हजर में, तो उसमें कहा when I am fashioned him and breath in him of my spirit। अब उसमें जो है अपनी रूह डाली थी क्या? ये एंजल गैब्रियल को डाला था? नहीं, तो वहाँ तो होली स्पिरिट तो नहीं लिखा हुआ ना जी। नहीं, वो क्योंकि माई स्पिरिट है ना, माई स्पिरिट का मतलब ओनली गॉड इज होली, राइट? नहीं, वो तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन गॉड इज फ्री ऑफ एनीथिंग लाइक दैट। ये जो मटेरियल चीजें हैं ना, ये एक बड़ी फिलॉसफी है जो लोग
آپ نے کس صورت کا حوالہ دیا؟ کتنے نمبر صورت تھی؟ سورہ 15 verse 20 یا اچھا ایک منٹ، جو الحجر ہے جی سورہ الحجر 29. اچھا ورس 29 آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا لکھا ہے وہاں پر؟ آپ عربی پڑھتے ہیں، میں تو پڑھتا نہیں، لیکن انگلش کی جو ٹرانسلیشن ہے کارپس قرآن میں ورڈ بائی ورڈ بھی میں دیکھ رہا ہوں. نہیں وہ اس تو میں مطلب لکھا when I have fashioned him and breathed into him of my spirit, fall down in prostration. ہاں تو اچھا وہ آپ وہ والی صورت پڑھ رہے ہیں. دیکھیں مجھے یاد کرنی پڑتی ہے، یہ میرا خیال ہاں 29 میں ہی ایسا ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اور جب فائزہ سویت ہو، اس کو کہتے ہیں سویت، عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو بناتے ہوئے اس کے فائنل ٹچ دینا، ٹھیک ہے نا، اس کی شکل و صورت سنوارنا، درست کرنا، فائنل ٹچ آپ کہہ سکتے ہیں. اسی لیے کہا نا عربی کی بالکل صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتی. فائزہ سویت ہو، کوئی عرب سنے گا تو آپ کو کہے گا کہ یہ جو ہے نا کسی کوئی چیز بنائی ہے اور اس کو فائنل ٹچ دیے ہیں، تو یہ سویت ہو ہے، یعنی اس کو بنایا اور ٹچ دیا. فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر اس میں اپنی روح کو پھونک دوں گا. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب میں اس کو بالکل ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اپنی روح کو اس میں پھونک دوں تو کیا کرنا؟ ساجدین، اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا. ٹھیک جی تو یہ مطلب کس کو کہا جا رہا ہے؟ اگلی آیت جو ہے نا وہاں پر میرا خیال لکھا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سجدہ کیا فرشتوں نے تمام نے مل کر. اگلی آیت میں لکھا ہے، اس سے پہلے کہ آپ آگے جائیں تو یہاں پہ جو آپ نے 2 پوائنٹس بڑے اچھے اٹھائے ہیں کہ جب اس نے کہا فیشن ہے اس کو کمپلیٹ کر دیا. ہاں اچھا، تب اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اس کو سجدہ کرو. نہیں کہا کہ جب روح پھونک دو تو پھر سجدہ کرنا. ہاں، جب اپنی روح ڈالی ہاں تو پھر کیا سجدہ کرو. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اس کلے کو سجدہ کرو، بلکہ میرے روح کو سجدہ کرو جو میں نے اس میں ڈالی ہے. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن شیطان جو تھا، ابلیس جو تھا، وہ اس اللہ تعالیٰ کی روح کو نہیں دیکھ پایا بلکہ اس کلے کو دیکھ رہا تھا، اس لیے وہ فزیکل کمپیرزن میں پڑ گیا. ہاں وہی آیت میں آپ کو سنا رہا تھا نا، آگے لکھا ہے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، ان یکون مع الساجدین، کہ سجدہ والوں کے ساتھ ہونے سے. فرشتوں سب نے سجدہ کیا، کلو، دیکھیں نا یہاں پر کل کا لفظ ہے، کلہم، فسجد الملائکۃ کلہم، پورے کے پورے، کوئی ایکسیپشن باقی نہیں رہے، اجمعون، ملا کر سب نے سجدہ کیا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا. ان یکون مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے. ماں مطلب ہوتا ہے ساتھ، عربی زبان میں ماں ساتھ کو کہتے ہیں. تو اس نے ان کا ساتھ دینے سے، ان کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا جنہوں نے سجدہ کیا. مطلب ٹیکنیکلی کہیں تو سجدہ نہیں کیا اس نے. کالا یا ابلیسو ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ نے کہا، کالا اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ابلیس کیا ہوا تجھے کہ تو نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. کہ ماں کا مطلب ساتھ کا ہوتا ہے نا. کہتا ہے کہ کہا اللہ تعالیٰ نے تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا. کالا کہا لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون. تو اس نے وجہ بیان کی، کہتا ہے کہ میرے لیے روا نہیں ہے، لم اکن، کہ میرے لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، لأسجدو، کہ میں سجدہ کروں، لبشر، ایک ایسے بشر کو، خلقتا ہوں، جس کو اللہ نے آپ نے تخلیق کیا ہوا ہے، من صلصال،
मिन हमाइन मसनून, कि जिसको कहते हैं ना सना हुआ सख्त किस्म का गारा और खड़खड़ाती मिट्टी, सलसाल कहते हैं खड़खड़ाती को, खड़खड़ाती हुई मिट्टी के गारे से, सलसालिन मिन हमाइन मसनून। तो आपने ये बात कही कि उसने ये नहीं देखा कि रूह अल्लाह की है, कि ये देखा कि ये मिट्टी से बनाया। काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, अल्लाह ने कहा तुम यहां से निकल जाओ, अब तुम यकीनन मरदूद हो गए हो। व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन, और यकीनन तुम पर लानत रहेगी रोजे जज़ा तक। हाँ जी, यही बात कह रहे थे आप। हाँ, बात यही थी, लेकिन बात जो थी वो थी कि होली स्पिरिट की बात हो रही थी। हाँ जी, जो रूह जिसकी बात हो रही है इस वर्स में, नहीं वो होली वो जो है एंजल गैब्रियल तो नहीं है ना? एंजल गैब्रियल है जी, वो कि उसने अपना जो अल्लाह ताला ने आदम में डाली रूह, वो नहीं वो तो बहुत सुपीरियर है रूह है ना, वो तो अल्लाह ताला ने अपना एक, जैसे इसमें लिखा है कि अल्लाह ने कहा कि जब मैं संवार लूं अपनी रूह फूंक दूं, इसीलिए इंसान की सजा भी बड़ी सख्त है। आप इस बात पर भी गौर करें, इंसान को बनाया भी सुपीरियर अशरफुल मखलूकात और सजा भी सख्त। और जो होली स्पिरिट है इसको उर्दू में कहते हैं रूहुल कुदस, आपने नाम सुना है? रूहुल कुदस कहते हैं। रूहुल कुदस हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। नहीं देखिए, ये जो है ये एक दो अंडरस्टैंडिंग है। इस्लाम में अंडरस्टैंडिंग है कि रूहुल कुदस जो है वो एंजल गैब्रियल है, ठीक है। हाँ जी। जबकि क्रिश्चियनिटी में इसको नहीं समझा जाता, इसको कहता है खुदा की रूह, उस रूह की बात कर रहे हैं जो कि आदम में डाली गई। नहीं, लेकिन वो तो ट्रिनिटी का कंसेप्ट के खिलाफ हो गया ना, कि जब वो कहते हैं द फादर, द सन, द होली स्पिरिट, वो तो तीन इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को एड्रेस करते हैं। हाँ नहीं, वो देखिए ना, बात तो ये है कि ये आप बिल्कुल सही है। जो क्रिश्चियनिटी की रूह में एक किस्म के, क्योंकि जब आप उनको कहो ना कि आदम में डाली पाक रूह, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनके लिए ये है कि नहीं पाक रूह जो है वो हज़रत ईसा उससे पैदा हुए थे, ठीक है। वो इसको एक डिफरेंट लेते हैं। हाँ, वो मैसेज लेकर जो आए थे ना, ये कुरान में भी लिखा है, जो रूह मैसेज से रूहाना लफ्ज है, रूहाना फतमस्सल लहा बशरन सविया, एक रूह आई जो इंसानी शक्ल में, एक मुकम्मल इंसान की शक्ल में जाहिर हुई, तो इसी रूह का नाम रूहुल कुदस है। ठीक, ये कुरान का भी यही कंसेप्ट है। और वो है एंजल गैब्रियल। एंजल गैब्रियल, कुरान में भी एंजल गैब्रियल को रूहुल कुदस का है। यही मैं जिस चीज़ पे एक्चुअली पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि जो है ना, जो अल्लाह ताला ने इंसान में जब उसको वो रूह डाली और सबको कहा इसको सिजदा करो, वो एंजल गैब्रियल नहीं है। नहीं, वो रूह जो है वो गैब्रियल नहीं है। नहीं, आप उसको रूहुल कुदस कह दें, लेकिन वो तो अल्लाह ताला ने कहा मैंने अपनी रूह फूंकी, ठीक है, तो उसका रूहुल कुदस से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, आप उसको रूहुल कुदस इस मानों में कहना चाहते हैं कि कुदस कहते हैं मुबारक, होली जिसको है ना, जी। स्पिरिट कहते हैं रूह को, होली का मतलब कुदस है, पाक जो है, बड़ी पाक और मुबारक। अगर आप उस रूह को पाक रूह कहते हैं तो हमें तो कोई इतराज नहीं है, लेकिन जो रिलीजन में है वो ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा गया। अच्छा, ये बताइएगा कि एंजल्स के लिए कुरान में कितनी दफा वर्ड होली यूज हुआ है? नहीं, एज ए पर से तो होली नहीं यूज किया गया, लेकिन जिस अंदाज में जैसे सूरह मरियम में बात की गई है, अगर आप सूरह मरियम को पढ़कर देख लें तो वहाँ पर बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बातें दर्ज हैं, पूरा वाक़या दर्ज है। वहाँ से यही कॉन्सेप्ट निकलता है कि ये मुकद्दस रूह है जो उनके सामने जाहिर हुई। लेकिन द वर्ड होली एंजल्स के लिए कितनी दफा, मैं ये पूछा था। सारे एंजल्स होली हैं, क्योंकि एंजल्स के बारे में कॉन्सेप्ट ये है
کہ وہ اس بات کی ان میں طاقت ہی نہیں کہ اللہ کے حکم کا انکار کر سکیں یا اللہ کی عبادت. ایول فیکٹر نہیں ہے ان کے پاس نا. ہاں ایول فیکٹر نہیں ہے ان کے پاس, اسی لیے وہ کہا گیا نا کہ فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا, کہ جب انہوں نے اپنے پردہ کر لیا اپنے قبیلے سے دور چلے گئیں, فارسلنا تو ہم نے بھیجا, الیہا آپ کی طرف, عورت کو الیہا کا تعلق لگاتے ہیں, روحنا ایک روح کو, فتمثل لہا جو ظاہر ہوئی ان کے سامنے, بشرن سویہ ایک مکمل انسان کی شکل میں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب میں جو جس چیز پہ آپ کی توجہ, ہاں نہیں ایز اے پر سے اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں انہیں ہولی کہا گیا تو ایسا نہیں کہا گیا, ایسا نہیں ہے نا, تو ان کے نام کے ساتھ ہولی لگایا نہیں گیا, وہ تو غلط ہوگا نا. نہیں وہ ہولی اس لیے کہلاتے ہیں کہ اس میں ایول پاور نہیں ہے. نہیں وہ تو کسی اینجل میں بھی نہیں ہے. ہاں تو سارے اینجل ہولی ہیں. ہاں تو لیکن میں جس کا آپ کی طرف غور کروا رہا ہوں وہ ہے وہ روح جو اللہ نے آدم میں پھونکی, کیونکہ اس روح کو پھونکنے کے بعد جو اپنی ہولی جس کو ہم کہتے ہیں پاک روح, تو سارے انسان ہولی ہے نا, پھر تو آپ یہ ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, the thing is کہ جب انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی تو پھر کہا کہ اس کو سجدہ کرو, کیونکہ وہ مٹی کو سجدہ کرنے کو نہیں کہہ رہے تھے, وہ روح کو کر رہے تھے, کیونکہ مقصد جو ہے انسان کو بنانے کا, اشرف المخلوقات وہ اللہ کی روح اس کو بناتی ہے, ٹھیک ہے, وہی وجہ ہے. ہاں نہیں ہم آپ کی بات سے اختلاف ہے ہی نہیں ہمیں, ٹھیک ہے, لیکن کیا ہوا کہ حضرت جو آدم تھے وہ کیونکہ he was dishonest to God in the sense کیونکہ he disobeyed God, اور انہوں نے disobedience کی وجہ سے اللہ کی روح ان کو چھوڑ گئی, اور پھر حضرت عیسیٰ میں وہ ظاہر ہوتی ہے. نہیں یہ قرآن میں نہیں لکھی بات, یہ آپ جو بات کا اب کر رہے ہیں نا کہ اللہ کی روح چھوڑ گئی, ایسا ہم مانتے نہیں اسلام میں. یہ دیکھیے نا اس کی وجہ میں بتاؤں آپ کو, اللہ کی روح جو ہے نا وہ ایک پاک جسم میں ہی رہ سکتی ہے, اور جب تک آدم کا جسم پاک تھا, پھل نہیں کھایا تھا, ڈسوبے نہیں کیا تھا, تب تک اللہ تعالیٰ کی روح اس میں قائم رہی. جیسے اس نے ڈسوبے کیا تو اللہ کی روح اس جسم سے جدا ہوگی. خدا کا جو پرپس تھا انسان کو بنانے کا وہ سب خراب ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب پھر نبیوں میں واپس آئی کہ نہیں واپس آئی؟ جی ہاں, تھرو حضرت عیسیٰ. اچھا تو اس سے پہلے جو نبی تھے دیکھو ان کو ایک ریولیشنز ملی, لیکن ایک تھرو, لیکن پاک روح ایک جسم ایسا نہیں, مطلب جو موسیٰ علیہ السلام تھے ان میں پاک روح نہیں تھی, ایک ٹچ تھا, لیکن یہ نہیں کہ وہ ایک پورا جسم ایسا تھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بالکل پاک تھا روح کے لیے. اچھا وہ پاک صاف نہیں تھے, مکمل پاک نہیں تھے جیسے حضرت عیسیٰ تھے. اچھا کیونکہ حضرت عیسیٰ کو تو پاک, دیکھیں نا حضرت مریم کو جب چنا خدا نے تو اس, حالانکہ وہ بڑی she was a pious woman, لیکن پھر بھی لکھا ہے کہ ان کو پاک کیا. کہاں لکھا ہے یہ پاک کیا؟ کس چیز سے پاک کیا؟ کہاں لکھا ہے پاک کیا؟ یہ آپ کو سورہ عمران کی 42 میں غالباً if I'm not mistaken. سورہ آل عمران کی سورہ 3 ہاں 42 آپ کا ہے غالباً, ابھی میں not totally right, لیکن نہیں آپ نے ترجمہ پڑھا ہوا ہے قرآن کا, آپ اس کو آپ نے اپنے مطلب کی باتیں الگ کی ہوئی ہیں, تو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ 42 میں پڑھیں تو ترجمہ بتائیں مجھے. نہیں ترجمہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں یو پک اینڈ چوز, رائٹ؟ نہیں کوئی بات نہیں اس میں, میں کہتا ہوں یو نیڈ اے برین ٹو پک اینڈ چوز. ہاں نہیں تو کون سی اس کا مضمون بتائیں, شاید مجھے یاد آ جائے آیت. دیکھیں اس میں ہے کہ when Allah has chosen you and purified. ہاں نہیں ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہے, آپ اس آیت کی بات کر رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكَ وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ
اور اس وقت کو یاد کرو کہ فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاک کر دیا ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ استفاک و طہرا کا. ٹھیک ہے نا, چن بھی لیا اور پاک بھی کر دیا. وَاسْتَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ, اور آپ کو تمام دنیا کی خواتین پر